So welcome guys again, and in this video we are talking about the parasitology short notes, which is as we are continuing series of for the exams MCRE. So in this series today our topic is about parasitology. This is a very detailed video for the parasitology and it may be helpful for your exam. First of all, introduction to parasitology. So parasitology means study of parasites. So it is a branch of microbiology which study the parasite, their host and their interactions, how they interact with their host and what cause infection. Other things are covered under this parasitology. Now another important thing is what is parasite. So an organism that are living being. So the parasite is living being on or inside another organism. So apart from the viruses which are only living being inside the host cell, but these parasites are not act like that. They are act as living being in or outside the organism or the host, right, and benefit at the host expense, or they will also take benefit from the host at their cost, right. It may be harmful for that or it may be not harmful for that. So based on what type of they are parasite, right, some of the commensal, so they neither benefit or not give a harm to the host cell, but in case of some parasitic type, so they harm the host cell, right. So this is a very important thing about the viruses. Now what is host? So host is an organism that harbor the parasite and provide nutrition. So host is we can say the food for this parasite. They will take advantage from that for their survival, for their progeny, reproduction, everything they take from the host cell, right. So it acts as their harbor. Now one important thing was vector, a living organism that transmits parasite from one host to another. So this vector is not only for the parasite, it may be also include for the bacteria or viruses, fungal. So vector is mainly a vehicle. So vector is a vehicle for the this organism, right, like mosquito, our flies, right. Now type of host: definitive host, intermediate host, reservoir host, and paratenic host. So we will discuss one by one. Definitive host, where the parasite mature and reproduce sexually. Very very important term, where we see the mature stage of parasite and reproduce sexually, like human for Plasmodium. Human is a definite host for Plasmodium. Intermediate host, where the parasite undergoes larva or asexual stage, where we see the larval or baby stage of parasite and mode of reproduction is asexual stage, like mosquito for Plasmodium. So in case of our Plasmodium, human is our definitive host, while the Plasmodium is our intermediate host, right, and mosquito is also act as a vector here, right. Another we have a reservoir host. As the name suggests, they act as a reserve for the cause infection to the next being, right. So harbor parasite without getting affected. So host जो हमारे रिजर्वेयर होस्ट होते हैं वो एक एक्ट करते हैं किस तरीके से, अपने अंदर इन्फेक्शन ले लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पैरासाइट या उस ऑर्गेन्स की वजह से, बट वो दूसरों को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लाइक लिशमानिया फॉर डॉग को इफेक्ट नहीं होगा किसके लिशमाने से, बट अगर डॉग ह्यूमन बीइंग के साथ रहेगा तो इट कैन बी बिकम अ सोर्स फॉर इन्फेक्शन एंड द लिशमानिया एंटर to the dog owner, right. So this is very important. Another we have a paratenic host, carry infective stage but does not undergo development. So this is very important thing. It like a reservoir host, they can cause infection to the next host, but paratenic host क्या चीज है, जहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन तो वो कर सकता है, कैरी इन्फेक्शन कर ही रहा है, बट अंडरगो इसमें नहीं होगा डेवलपमेंट, उसकी कोई स्टेज में डेवलपमेंट नहीं होगी जो हमारा पैरासाइट है, लाइक फिश इन सम पैरासिटिक साइकिल. जैसे कि फिश क्या करती है, दूसरों को इन्फेक्शन कर सकती है, बट फिश के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है. सो ये होता है हमारा पैराटेनिक होस्ट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. based on location where they are present, like ectoparasite, ecto means is outside the body.
सो लिव ऑन द बॉडी सरफेस, लाइस, स्टिक, फ्लीज, जो हमारे सर में जुएं वगैरह होती हैं सब आउटसाइड रहती है, राइट। इन केस ऑफ डॉग आपने देखा उसके कान में टिक्स वगैरह होती है। अनदर वी हैव एंडोपैरासाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेंजरस फॉर अस। लिव इनसाइड द बॉडी लाइक प्लाज्मोडियम एस्कैरिस एंड ऑल द अदर थिंग, Taenia, Solium saginata, these are the endoparasite. Based on dependency, obligate parasite complete depend on the host. Like Plasmodium के केस में क्या होगा, उसको अपनी ग्रोथ पूरा करने के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड होने ही होना, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। अनदर वी हैव फैकल्टेटिव पैरासाइट, अगर होस्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपनी लाइफ को जी लेंगे। कैन सर्वाइव विद और विदाउट द होस्ट, Naegleria fulvaris is a very good example and it is very harmful for our brain. Opportunistic parasite, as the name suggests, वो अपनी खुशी में है, but when they get opportunity they can also infect to the human being. So cause disease only in the immunocompromised patient. मैंने सब वीडियो बता रखा पूरा। सबसे बड़ा तुम बीमारियां तब लोगे जब तुम्हारी हेल्थ सही नहीं होगी। हेल्थ सही ना होने का रीजन जंक फूड, सो वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़े मेडिटेशन, ये सब चीज होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में, ताकि ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन बनी रहे, राइट। टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी HIV पेशेंट, HIV पेशेंट में इम्यूनिटी कम होती है तो टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी एक्ट करता है ऑपर्चुनिस्टिक पैरासाइट का, राइट। नाउ अनदर वी हैव अ बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, सो डायरेक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन वन होस्ट। डायरेक्ट लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट के अंदर वो अपनी कंप्लीट करता लाइफ साइकिल विदाउट एन इंटरमीडिएट होस्ट, लाइक एस्कैरिस लेम्बरिकॉइड, ट्राइचेरिस ट्रिचुरिया, राउंडवॉर्म जो उसका निकनेम है इंडियन नेम, और विपवॉर्म, राइट। दिस Trichuris trichuria is our scientific name, Whipworm is a common name. Indirect life cycle, where the whole parasite अपनी जो लाइफ है वो बिताता है किसी दो के अंदर, ठीक है। रिक्वायर वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर कंप्लीशन, सो एक या उससे ज्यादा होस्ट चाहिए होता है उसको बिताने के। जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे प्लाज्मोडियम केस में क्या है, जो हमारा मलेरिया है प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन मॉस्किटो दो चाहिए, टीना सोलियम पिग और ह्यूमन दो चाहिए उसको अपनी लाइफ बिताने के लिए। नाउ दिस बेस्ड ऑन साइज कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। सो वी हैव अ डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सच एज प्रोटोजोआ पैरासाइट, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं इनको, माइक्रोस्कोप मतलब आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जांपल क्या, एंटीमोहिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, लिशमानिया। देन हमारे पास हेलमिंथीज होते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़े बड़े, आपने देखो पेट में कीड़े होते हैं बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वो किस में होते हैं, किसके अंदर आते हैं, हेलमिंथीज के अंदर। मल्टी सेलुलर वॉर्म होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। वाइल द प्रोटोजोआ वो सिंगल सेल होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज वो भी सिंगल सेल है। तो ये डिवाइड होते हैं किसमें, नेमेटोड, ट्रिमेटोड एंड कैस्टोड में, तीन में डिवाइड है ये, राइट। निमेटोड जिनको हम राउंडवॉर्म कहते हैं, सिलेंडर शेप को, एस्कैरिस, हुकवॉर्म, विपवॉर्म, फिलेरिया वॉर्म, सो ये सारे इसके अंदर। ट्रिमेटोड फ्लूक शेप के होते हैं, ठीक है, तो ये पत्ते की शेप के होते हैं, मेनली पत्ते की शेप में। सिस्टोसोमा जो कि हमारा ब्लड फ्लूक है, फेजिकुला हेपेटिका जो कि लिवर फ्लूक है, सो ये क्या है हमारा ट्रिमेटोड है। देन कैस्टोड टेप की तरह होते हैं, जैसे टेप होती है ना बिल्कुल फ्लैट, वैसे दिखते हैं। तो टीना सोलियम में जिसको हम पॉक टेप वर्म कहते हैं, या टीना सेजिनेटा जिसको बीफ टॉप टेप वर्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ना उन्हीं की समझ में आएंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, अदरवाइज ये बाउंस मार रहे होंगे कि ये क्या इतना जल्दी हो रहा है, बट जिन्होंने पढ़े होंगे उनके लिए अरे वाह ये तो चलो रिवीजन हो रहा है, राइट। देन वी हैव आर्थ्रोपोड्स, एज ए नेम सजेस्ट, इसमें कोई हमारे लिविंग बीन आने वाले हैं, एक्टोपैरासाइट वेक्टर की तरह काम करते हैं, लाइस, फ्लीज, टिक एंड माइट्स। नाउ मेडिकल इंपॉर्टेंस पैरासाइट डिजीज, सो ये है कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस पैरासाइट और उनसे जो डिजीज कॉज करती है, राइट। उनका ट्रांसमिशन कैसे, वेक्टर क्या है, बहुत सारे हैं, बट मैंने थोड़ा सा अरेंज करा है ये क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। जैसे कि एंटीमोहिस्टोलिका फर्स्ट हमारा प्रोटोजोआ है, एमीबेसिस कॉज करता है, डाइसेंट्री फिकल और रूट से ट्रांसमिट होता है, इसके लिए कोई वेक्टर की जरूरत नहीं होती, फिकल और रूट से ट्रांसमिट होता है। जार्डिया लैम्ब्लिया जिसको हम जार्डिसिस कहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर से होता है, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, राइट। इसको मोंकी फेस वायरसेस भी कहते हैं, ठीक है। मोंकी फेस ऐसा कुछ दिखता है और इसमें हमारे फिर फ्लैजेला होते हैं, राइट, ऐसे। देन प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज मलेरिया, मॉस्किटो बाइट, इसका वेक्टर क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो। लिशमानिया
कॉज लिशमानियासिस सैंड फ्लाई की बाइट से होता है, ट्रांसमिशन सैंड फ्लाई बाइट और फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई, इसका पूरा नाम है फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई, राइट। देन है ट्रिप्नोसोमा ब्रूजी, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, टीजी फ्लाई से होता है, टेसी फ्लाई बाइट से होता है, एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लोसियाना, राइट। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, जिसको चगास डिजीज कहते हैं, सी क्रूजी से चगास डिजीज। किसिंग बग कहते हैं, ट्राइटोमा बग की वजह से होता है, ये वेक्टर है इसका। देन टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। कैट की फीसिस और उनके मीट में हमको देखने को मिलता है, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं होती इसके लिए। तो ये किनको इसके मेन होने के चांसेस होंगे, जिनके पास कैट होगी। अस्कैरिस लंबरिकॉइड, जिसको हम अस्कैरिस कहते हैं, फिकल वेक्टर की जरूरत नहीं है। ट्राइचिस ट्राइचूरिया विपवॉर्म इन्फेक्शन, सॉइल से होता है ये, जो हम खेत वगैरह में काम करते हैं उनको बहुत इजीली हो सकता है, ये वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। नेक्टर मैरिकस हुकवर्म जिसे कहते हैं हम, स्किन पेनिट्रेशन करता है, हुक काइंड ऑफ हुक होती है इसके आगे, बैक्टीरिया के आगे, तो वो उसी हुक से एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर। ये भी मेनली जो अपने नंगे पैर चलते हैं उनमें बहुत ही प्रॉब्लम होने के चांसेस आते हैं, वेक्टर की जरूरत नहीं है। टीना सोलियम या टीना सेजिनेटर, जिसको पॉक टेपवर्म या फिर हम बीफ टेपवर्म कहते हैं, इनकेस ऑफ सेजिनेटा। कैसे होता है, अंडरकुक्ड पॉक मीट या वाइस वर्सा बीफ लेते हैं, ठीक है, तो कोई वेक्टर की जरूरत नहीं होती। सिस्टोसोमा सिस्टोसोमियासिस होता है कंटेमिनेटेड वाटर से, स्नेल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वेक्टर in which parasite need a vector snail, so schistosoma, right। then we have Vachyuria bancrofti, जो कि फिलेरियासिस को कॉज करता है, इसको हाथी पाव भी कहते हैं हम हिंदी में, मॉस्किटो बाइट से, एंड द नेम ऑफ मॉस्किटो इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। सो ऐसा नहीं इतना ही है, दे हैव सो मेनी टाइप ऑफ नंबर ऑफ वी हैव अ पैरासाइट, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ रिवीजन में हम बहुत कुछ नहीं डाल सकते ना। Then important and life cycle of the parasite, important life cycle क्या parasite की, एंटोमिया हिस्टोरिका, जिसको हम एम्यूसिस कहते हैं, इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी सिस्ट है, कहाँ होती है, सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, कैसे ट्रांसमिट होती है, कंटेमिनेटेड फूड वाटर से। किसकी बात हो रही है, एंटोमिया हिस्टोरिका की। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में। कॉज क्या करती है, अल्सर एंड ब्लडी डायरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी सी द ब्लडी डायरिया इन केस ऑफ एंटोमिया हिस्टोरिका। अनदर वी हैव अ प्लाज्मोडियम, सो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजाइट इन्फेक्टिव फॉर्म है जो कि मॉस्किटो के माउथ में होती है, और जैसे मॉस्किटो खून पिएगा तो वो खून पिएगा, साथ ही साथ वो जो है स्पोरोजाइट वो ब्लड में रिलीज करेगा, और फिर वो वहां ग्रो होंगे, पूरा अपना साम्राज्य बिछाएंगे, एंड दे विल जस्ट डिस्ट्रॉय द ह्यूमन बीइंग, राइट। ट्रांसमिशन, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो बाइट से होता है। सिम्टम, हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मलेरिया, राइट। अनदर वी हैव अ टीना सोलियम व्हिच इज नोन एज पॉक टेपवर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म है लार्वा, सिस्टिसर्किस, एंड कॉज टीनियासिस, इंटेस्टाइनल टेपवर्म, माइल्ड सिम्टम है। एंड सिस्टिसर्कोसिस ब्रेन की इन्फेक्शन कॉज करती, कैन बी फैटल, राइट, ब्रेन की इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। Vachyuria bancrofti cause filariasis, infective form of microfilariae, Vectraculus mosquito cause elephantiasis, severe limb swelling, बहुत तगड़ी तरीके से हाथ पैर इसमें सूज जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी इन केस ऑफ Vachyuria bancrofti। Now another we have very important part, laboratory diagnosis of parasite. So we are diagnosing with the help of so many techniques. First of all, sample collection. So where the parasite are present, we take sample from that site. In case of stool sample, we need a stool sample for ovine parasite test. Intestinal parasites के केस में हम stool sample लेते हैं। blood sample, blood borne जो parasite है जैसे प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, माइक्रोफ्लेरिया। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में आते हैं कि which of the following is not a blood borne parasite. So maybe ये तीन ऑप्शन हो, एक इंटेस्टाइन वाला हो जाएगा, स्कैरिस लंबरिकॉइड जो कि ब्लड में नहीं, वो इंटेस्टाइन में होता है, so that will be exclude, right। प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, माइक्रोफ्लेरिया, all these are the ब्लड बॉर्न। यूरिन सैंपल में कहते हैं सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, यूरिनरी सिस्टोसोमेसिस कहते हैं। स्पूटम में कहते हैं जो लंग्स में होगा, पैरागोनियम एस्ट्रोमानी, लंग फ्लू का हमारा, ठीक है, स्ट्रोंगुलॉइड्स लार्वे, उसमें हमको देखने को मिलते हैं। सीएसएफ में जो कि ब्रेन में होगा, नाइग्रेरिया फल्वेरी, राइट, ट्रिप्नोसोमा भी हो सकता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन ईटिंग अमीबा कैसे कहते हैं, नाइग्रेरिया फल्वेरी। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच हो रहे हैं, ब्रेन ईटिंग
amoeba is a Naegleria fowleri. Skin scraping, in case of leishmania we see skin lesion, scabies mites. टिश्यू बायोप्सी किस मीनिंग में, टॉक्सोप्लाज्मा ट्रिचिनल लिशमानियासिस, इसमें हम टिश्यू बायोप्सी भी ले सकते हैं बिकॉज ये टिश्यू के अंदर याद रहते हैं. बोन मैरो एस्पिरेट लिशमानी डोनावानी काला आजार है जो कि उसमें हम बोन मैरो एस्पिरेट भी ले सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन. अब जब हम सैंपल ले ले तो उसको अंडर माइक्रोस्कोप भी देखेंगे. तो वी हैव अ डिफरेंट टेक्निक सच एज अ डायरेक्ट वेट माउंट जिसमें हम सेलाइन या आयोडीन में देखते हैं. सेलाइन ट्रांसपेरेंट और लिविंग बीइंग के लिए होता है और आयोडीन किल और एक कलर कंट्रास्ट देता है. डिटेक्ट मोटाइल प्रोटोजोआ एंटोमेस्टोलिक जाडे लैमलर, और सेलाइन में हम लाइव बैक्टीरिया देख सकते हैं. कंसंट्रेशन टेक्निक होती है, जैसे बहुत सारे पैरासाइट हो गए उसमें हम एक जगह इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, दिस कंसंट्रेशन टेक्निक एनहांस द पैरासाइट डिटेक्शन, जिसकी वजह से हम पैरासाइट को इजीली डिटेक्ट कर पाए. वी हैव अ सेडिमेंटेशन टेक्निक जिसमें कि डिटेक्ट हैवी एग्स. सेडिमेंटेशन टेक्निक में हम एक सॉल्यूशन डालते हैं जो कि हल्का होता है, तो एग जितने भी थे वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम नीचे से अपनी बना सकते हैं स्लाइड. सिस्टोसोमा एंड फेजिकोला नाम है. अनदर वी हैव अ फ्लोटेशन मेथड जिसमें कि हम भारी कोई सॉल्यूशन लेते हैं और जो हमारे एग होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं और हम ऊपर से स्लाइड बना सकते हैं. इन केस ऑफ एस्कैरिस, हुकवर्म एंड टीनिया. परमानेंट स्मीयर स्टेन भी होती है, जिम्सा, ट्राइकोम, आयरन. हेमाटॉक्सिलिन, सॉरी फोन बज रहा था. Now we have a KH point also. KH किसके लिए होता है, फंगल एलिमेंट्स के लिए, which is very important. some parasite लिशमानिया में हम इसको यूज कर सकते हैं. ब्लड पैरासाइट डिटेक्शन, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में थिक स्मेयर और थिन स्मेयर डिटेक्ट प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, माइक्रोफ्लोरिया इन केस ऑफ थिन स्मेयर, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, राइट. बफी कोट स्मेयर लिशमानी डोनावानी कालाजन बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट कंसंट्रेशन टेक्निक फॉर माइक्रोफ्लोरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉट कंसंट्रेशन टेक्निक टेस्ट यू यूज फॉर माइक्रोफ्लोरिया. QBC को क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट मलेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम के लिए, और फ्लोरेसेंस स्टेन इसमें यूज होती है, राइट. ब्लड कल्चर फॉर लिशमानिया ट्रिप्नोसोमा. वी हैव अ सर्जिकल टेस्ट लाइक ELISA डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन केस टॉक्सोप्लाज्मा मलेरिया, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है. IFA इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, फ्लोरेसेंस यूज होता है इसमें, ट्रिप्नोसोमा लिशमानिया के लिए यूज होती है. वेस्टर्न ब्लॉट फॉर टॉक्सोप्लाज्मा एंड सिस्टोसर्कोसिस, कंफर्मेड टेस्ट है ये इनके लिए. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी होते हैं बेस्ड ऑन DNA RNA एक्सटेंशन, राइट. PCR बेस्ड टेस्ट हो गए, पॉलीमर चेन रिएक्शन, प्लाज्मोडियम, टॉक्सोनल लिशमानिया, इन सब के लिए करते हैं. लूप मेडिटेटेड सोर्टमल एम्प्लीफिकेशन, बेसिकली ये अपनी PCR की एक हायर टेक्निक है. माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी डिटेक्ट मल्टीपल पैरासाइट वंस, जैसे PCR में हम एक ही को ग्रो कर सकते हैं, है ना, बिकॉज उसके हमारे पास DNTPs होते हैं, उसी का हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं इन लेमन लैंग्वेज. बट इन केस ऑफ माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी हम मल्टीपल पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट. कल्टीवेशन मेथड, कुछ हमारे कल्चर मीडिया में ट्रिपल एन, नोवी, निकोल, मैकनील मीडियम लिशमानिया ट्रिप्नोसोमा के लिए. RPMI 1640 रोजवेल पार्क फॉर मेमोरियल इंस्टीट्यूट, प्लाज्मोडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मुझे खुद में बहुत मजा आ रहा है इसको, क्योंकि ये ना बहुत सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं इसमें पैरासाइट की इस वीडियो में हम. लिवर इन्फ्यूजन अगार है एंटीमाइस्टोलिटिका के लिए. Then we have a immunochromatography rapid test, rapid malaria antigen, HRP, histidine rich protein to test, detect plasmodium falciparum. ICT, indirect comb test for filariasis, detect Wucheria bancrofti. डेंगू लिशमानिया रैपिड टेस्ट भी होता है क्विक स्क्रीनिंग के लिए, राइट. एडवांस डायग्नोस्टिक मेथड भी फ्लो साइटोमेट्री होगा, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होगा, या मेटाजेनोमिक्स हो गया, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए. बट ये तो बहुत ही हाई लेवल की बात होगी. कुछ स्पेशल स्ट्रेन जैसे कि जिम्सा स्ट्रेन मलेरिया में, ट्रिप्नोसोमा और बेबीज में, ट्राइकोम स्ट्रेन एंटोमिबा जियार्डिया में, मॉडिफाइड स्टीरिफाइड जेरसिन क्रिप्टोस्पोडियम साइक्लोस्पोरा में, लिशमन स्ट्रेन लिशमानिया प्लाज्मोडियम में, इंडियन क्रिप्टोकोकस, राइट, यूज्ड इन फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन. देन हमारे पास कुछ एंटी पैरासिटिक ड्रग भी है, आप इनका नाम जरूर याद कर लेना. मेट्रोनिडाजोल जो लगाता है मेनली इनमें लास्ट में, क्लोरोकॉन, देन फिर एल्बेंडाजोल, मेल्बेंडाजोल, फॉर राउंडवर्म, टेपवर्म, जिसको पेट में इन्फेक्शन होती है, बड़े बड़े मेनली पेट की इन्फेक्शन में एल्बेंडा और मेबेंडाजोल, ये दो देते हैं, ठीक है. इसके अलावा भी है फिलेरिसिस में है डाइथाइल कार्बामाइजाइन DEC. देन प्रिवेंशन कंट्रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, है ना. पर्सनल हाइजीन,
जितनी भी इन्फेक्शन होती है अगर हम हाइजीन मेंटेन करें तो 70-80% तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। हैंड वॉशिंग हो गया, प्रॉपर सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बॉयल कर लो उसको, ठीक है, फिल्टर कर लो बिफोर ड्रिंकिंग, प्रॉपर कुकिंग करनी चाहिए, रॉ फूड को अवॉइड करना चाहिए, अंडर कुक्ड मीट को, वेक्टर कंट्रोल के यूज मॉस्किटो नेट रिप्लिकेंट इंसेक्टिसाइड, ताकि बैक्टीरिया ना, वेक्टर नहीं होंगे तो ट्रांसमिशन रुक जाएगी। डिवार्मिंग प्रोग्राम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिवार्मिंग प्रोग्राम भी होते हैं कई जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन का आउटब्रेक होता है। तो ये सब चीज है हमारी किसके रिगार्डिंग, पैरासाइटिक। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ आई थिंक, तो आप वीडियो को स्लो देखे एंड यू कैन कंटिन्यू फॉर वाचिंग। एंड तो ये हमारी पैरासाइटिक वीडियो, आई होप यू एंजॉय इट एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, मे बी इट इज हिस्टो वीडियो, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज में थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने 1-2 वीडियो रिकॉर्ड कर ली है सो दैट कम से कम मैं कुछ तो दे पाऊँ। बट थैंक यू ऑल ऑफ यू।